Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we will discuss our topic is the role of kidney in acid-base balance. The kidney role in acid-base balance of blood, how it can be done by our body, by the kidney. There are different type of mechanisms which are done by kidney. We will discuss these all mechanisms in this lecture. First of all, we say in the renal system there are a pair of kidney, ureter, urinary bladder and urethra. जो हमारी बॉडी का renal system है वो pair of kidney पे जो है वो maintain कर रहा है. तो जो हमारी बॉडी का acid base balance है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं और इन डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के नतीजे में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करती है, एसिड की जो है वो प्रोडक्शन होती रहती है. तो ये जो एसिड है इसको किस तरह से मेंटेन करना है और किस तरह से किडनी जो है इसकी मेंटेनेंस में रोल जो है वो प्ले करती है, उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे. तो हमारी बॉडी का उससे पहले हम देखते हैं कि हमारी बॉडी का जो रेनल सिस्टम है वो किस चीज के ऊपर जो है वो रिलाई कर रहा होता है. तो उसमें हमारे पास पेयर ऑफ किडनी है, यूरिटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर है एंड यूरिथ्रा है. Then structure of nephron. Nephron is basically the functional unit of the kidney. The function of the kidney is basically done by millions of nephrons which are present in our kidney. So we discuss here the structure of nephron. The nephron is basically made up of Bowman capsule. Then there is proximal convolutive tubule. Then there is thick descending segment, then thin descending segment, then U-shaped loop जिसे हम कहते हैं hairpin band, then thin ascending segment, thick ascending segment, and distal convoluted tubules, and then there will be the collecting duct, and these collecting ducts will enter into the main duct, and through the main duct the urine is the main duct will open in the urethra, and then the through urine is excreted from the body. So uh, the main function of nephron in acid-base balance, how the acid-base balance of our body is done by nephron, उसको जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ब्लड है बेसिकली वो एंटर करता है एफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू इन ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलस को लीव करता है इफरेंट आर्टरियोल की फॉर्म में. अब ब्लड जब एफरेंट आर्टरियोल से ग्लोमेरुलस में आता है और देन ग्लोमेरुलस से लीव करता है एफरेंट आर्टरियोल की फॉर्म में, तो डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है वो अब्सॉर्ब होते हैं इस लेवल के ऊपर बोमेन कैप्सूल में. और बोमेन कैप्सूल्स में वो proximal convoluted tubule, then U-shaped loop of Henle, then distal convoluted tubule, and from the distal convoluted tubule यहाँ से जो है वो collecting duct में चला जाता है. अब इसके डिफरेंट टाइप की कैपिलरीज भी मौजूद होती हैं. उन कैपिलरीज के अंदर जो है वो अब्सॉर्प्शन और रीअब्सॉर्प्शन का जो है वो सिक्रीशन के मैकेनिज्म के साथ साथ चल रहे होते हैं. यही जो अब्सॉर्प्शन और रीअब्सॉर्प्शन के मैकेनिज्म है, सिक्रीशन के मैकेनिज्म है डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस की, जैसे कि वाटर की रीअब्सॉर्प्शन हो रही होती है, डिफरेंट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस की रीअब्सॉर्प्शन जो है वो हो रही होती है, और डिफरेंट जो है वो एसिडिक कंपाउंड की जो है वो क्या हो रही होती है, यहाँ से सिक्रीशन हो रही होती है. और ये सिक्रीशन जो है वो ह्यूमन के अंदर हो रही होती है इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ह्यूमन के अंदर, और यहाँ से वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू जो है वो किडनी को लीक कर जाती है. ठीक, तो how the kidney play role in the acid base balance, we are basically discussing the main topic is here. So first of all we have to know about acid. What is acid? Any compound which form hydrogen ions in solution.
any compound which gives hydrogen ion in the solution form, that is एसिड। जैसे कि कार्बोनिक एसिड जो है वो रिलीज करता है हाइड्रोजन आयन को, तो वो क्या है, एसिड है। एंड बेस क्या है, एनी कंपाउंड विच कंबाइन विद हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन that will be act as a base. Like bicarbonate accept the hydrogen ion, so bicarbonate is basically a base. So which gives hydrogen ion, that is proton donor is acid, and which accepts the proton is base. Okay. तो एसिड और बेस का जो है वो हमने मेन डिफरेंस देखा है कि ऐसा कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन आयन को फॉर्म करेगा, जो कि प्रोटॉन को डोनर करेगा, प्रोटॉन डोनर होगा, वो हमारे लिए एसिड है। और ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन करेगा वो हमारी बेस है। अब नॉर्मल पीएच जो हमारी बॉडी की होती है दैट इज 7.35 टू 7.45। तो एसिडोसिस क्या है, ऐसी फिजियोलॉजिकल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम एबनॉर्मली लो प्लाज्मा पीएच, कि जिसमें हमारी बॉडी की पीएच जो है वो क्या होती है, लो हो जाती है, जिसमें ऐसी प्लाज्मा जो है वो स्टेट है, लाइक ब्लड के अंदर जो है वो पीएच जो है वो फॉल कर जाती है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है। तो ऐसी फिजियोलॉजिकल स्टेट को हम एसिडोसिस कहेंगे। Alkylosis is basically the physical state resulting from abnormally high plasma pH, in which you can see as the bicarbonate concentration is increased. So that state will be the alkylosis. So acidemia क्या है? What is alkalemia? When the plasma pH, plasma जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, तो जब हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा की पीएच 7.35 से लेस हो जाएगी, दैट विल बी एसिडीमिया। ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे एसिडीमिया। अल्कलीमिया क्या है कि व्हेन द प्लाज्मा पीएच इज ग्रेटर देन 7.45, जब अल्किलाइन स्टेट जो है वो इंक्रीज कर जाती है, like you can say it as the bicarbonate concentration will increase in the body, then the alkylemia will occur. So the condition of alkylemia when the pH of the plasma in the blood is greater than 7.45, then the condition is known as alkalemia. So the kidney basically play an important role in the maintenance of acid-base balance. ये जो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन है, ये जो बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन है, ये जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से एसिडिक जो कंडीशन क्रिएट हो जाती है, बॉडी की प्लाज्मा की पीएच जो है वो कम हो जाती है, एसिडीमिया हो जाता है, तो उसको और अल्कलीमिया को किस तरह से मेंटेन करता है उसको हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मली जो यूरिन है दैट इज एसिडिक इन नेचर विद अ पीएच ऑफ 4.5 टू 6। तो यूरिन का एसिडिक होना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं और उससे एसिड की प्रोडक्शन हो रही है, तो वो जो एसिड है वो मोस्टली थ्रू द यूरिन जो है वो क्या कर जाता है, एक्सक्रीट कर जाता है। तो यूरिन इसीलिए एसिडिक है। Metabolic activities in the body produce large quantity of acid which push the body towards acidosis. तो वो जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू जितना भी एसिड की प्रोडक्शन हो रही है वो बॉडी को मूव कर रही है टुवर्ड्स एसिडोसिस। ओके, सो किडनी प्रिवेंट दिस टू वे, मतलब जो किडनी है वो एसिडोसिस को दो तरह से प्रिवेंट कर रही है। एक तो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट और सेक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो अब हमने देखना है कि किस तरह से वो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट करती है और किस तरह से वो सेक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन करती है। रीअब्सॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट का मतलब ये है कि इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से जितना भी बाइकार्बोनेट इस वुमेन कैप्सूल से जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के लेवल पे आए हैं, इन ट्यूब्यूल से इन्होंने रीअब्सॉर्ब कर जाना है इस ब्लड के अंदर।
और सिक्रीशन का मतलब ये है कि ये जहां वुमेन कैप्सूल के सेल्स हैं दैट विल सिक्रीट द हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन करेंगे। तो जो ये जो सिक्रीशन है और जो ये रीअब्सॉर्प्शन है दैट विल बी द टू वेज that prevent the kidney from the acidosis of body. So first of all we see कि reabsorption of bicarbonate क्या है और secretion of hydrogen ion क्या है। बेसिकली हमारे जितना भी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से बाइकार्बोनेट एंटर कर रहा होता है वुमेन कैप्सूल के अंदर और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर, द कंसंट्रेशन इज बेसिकली 4320 मिली इक्वल। Okay, that is 4320 milli equivalent. 320 milli equivalent. Milli equivalent basically, that is basically the unit. This is basically the unit which is defined as the concentration of the solute in the 1 liter of जो है वो liquid. तो मिली इक्विवेलेंट जो है ये बहुत जो है वो 10⁻³ के अंदर जाके जो है वो सोल्यूट की कंसंट्रेशन को जो है वो डिफाइन करने के लिए यूनिट यूज करते हैं। So about 4320 milli equivalent concentration of bicarbonate is basically through glomerulus is enter into the women capsule and in the nephron you can say it as. अब होना तो ये चाहिए जैसे ही वो नेफ्रॉन के अंदर उसने एंटर किया है वो यहाँ से होती हुई कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो एसिडिक है, उसमें एसिडोसिस है, एसिड है। बाइकार्बोनेट अल्कली का रोल प्ले कर रहा होता है, अल्केलाइन नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। अब जितना भी ये बाइकार्बोनेट एंटर कर रहा है हमारी इस नेफ्रॉन के अंदर तो उसमें से 85% जो है वो रीअब्सॉर्ब कर जाता है ब्लड के अंदर। मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरह से आप ये यहाँ पर देखें पिछली स्लाइड के अंदर ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से रीअब्सॉर्ब होकर सब्सटेंसेस जो है वो ब्लड के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो जितना 4320 जो है वो बाइकार्बोनेट जो ग्लोमेरुलस से वुमेन कैप्सूल के अंदर जाता है तो वो फर्दर जो है 85% उसकी रीअब्सॉर्प्शन हो जाती है ब्लड के अंदर अगेन। अब वो किस तरह से होगी उसको हम देखेंगे। अब ये जो रीअब्सॉर्प्शन है बाइकार्बोनेट की 85% प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में दैट विल बी 10% एंड 4 to 9% इन द कलेक्टिंग डक्ट एंड 1 मिली इक्विवेलेंट जो है वो पर लीटर पर डे जो है वो सिक्रीट हो रही है बॉडी। तो 4000 जो है वो 320 milli equivalent that will be the 100% concentration of the bicarbonate that enter into the women capsule, but only 1% 1 milli equivalent per day जो है वो bicarbonate is secreted is excreted in the urine, while 85 then 10% all the concentration is reabsorbed in the through nephron into the blood, and this reabsorption will cause the decrease in the acidic condition of the blood plasma toward basic condition. So secretion of hydrogen ion, तो हमने कहा था कि जो एसिडिक कंडीशन है एसिड बेस बैलेंस है किडनी का वो दो तरह से हो रहा है, एक तो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन, reabsorption of the bicarbonate ion, and the second one is the secretion of the hydrogen ion. अब secretion of hydrogen ion का मतलब ये है कि ये जो सेल्स हैं, ये जो ब्लड है, ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है इसके अंदर जो हाइड्रोजन आयन है वो या जो वुमेन कैप्सूल के सेल्स हैं इन्होंने ल्यूमन के अंदर सीक्रेट करना है। दैट मीन ये जो सिक्रीशन ल्यूमन के अंदर होगी ये सिक्रीशन कहाँ पर जाएगी, हमारे यूरिन के अंदर जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि जितना भी ब्लड जो है यहाँ पे एक्सक्रीट करता है वुमेन कैप्सूल के अंदर, तो दैट मीन जो यहाँ से निकलता हुआ कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा दैट विल बी आवर that will be urine. So ये जो यूरिन है इसके अंदर सिक्रीशन होनी है हाइड्रोजन आयन की, ठीक है।
तो हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन होगी, दैट मीन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का मतलब है कि पीएच जो है वो क्या हो जाएगी, यूरिन की इंक्रीज कर जाएगी। इसलिए जो यूरिन होता है वो क्या होता है, मोस्टली एसिडिक होता है। सो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द फिल्टर्ड, अब हम सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के देख रहे हैं कि हमने कहा कि जिस तरह से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट अकर करती है बाय द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द रेनल टिश्यू, reabsorption of bicarbonate will cause the secretion of hydrogen ion. About 4,380 milliequivalent of hydrogen ion appear every day in the renal tubule. 4,380 मतलब 4,380 milliequivalent of hydrogen ion एंटर कर रहा है किसके अंदर, रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर. But not all the hydrogen ions are excreted in the urine. Out of 4,380 milliequivalent of hydrogen ion, 4,280 to 4,330 milliequivalent of hydrogen ion is utilized for the reabsorption of the filter. That means कि जो बाइकार्बोनेट की reabsorption है उसके अंदर भी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का रोल है. तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की अब्सॉर्प्शन के लिए हाइड्रोजन आयन यूटिलाइज होता है. ये हम देखेंगे किस तरह से हाइड्रोजन आयन जो है वो बाइकार्बोनेट की रीअब्सॉर्प्शन में यूटिलाइज हो रहा है. Only remaining 50 to 100 milliequivalent is excreted, and this will cause the acidification of urine and the secretion of hydrogen ion in the renal tubules occur by the formation of the carbonic acid. अब मैं आपको बता दूं कि किस तरह से यूटिलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हो रही है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर. अब आप ये चीज इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें कि 4,380 मिली इक्विवेलेंट जो है वो अपेयर कर रहा था हाइड्रोजन आयन कहाँ पर, इस रेनल ट्यूब्यूल के अंदर. लेकिन इसमें से इस रेनल ट्यूब्यूल के अंदर जो एंटर कर रहा था हाइड्रोजन आयन, उसमें मोस्टली जो है वो यूटिलाइज हो रहा है बाइकार्बोनेट की रीअब्सॉर्प्शन में. ठीक है, यूटिलाइज हो रहा है. और ओनली 50% जो है 50 मिली इक्विवेलेंट जो है वो पर डे जो है वो सिक्रीट होता है यूरिन के अंदर. तो आप यहाँ से देख लें कि 1 मिली इक्विवेलेंट पर डे जो है वो बाइकार्बोनेट यूरिन के अंदर था और 50 मिली इक्विवेलेंट जो है वो हाइड्रोजन आयन है यूरिन के अंदर. दैट मीन कि यूरिन जो है वो मोर एसिडिक है. अब किस तरह से जो है वो हाइड्रोजन आयन जो है वो रोल प्ले करता है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि इन द रेनल ट्यूब्यूल्स अकर बाय द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड की जो है वो फॉर्मेशन होती है. किस तरह से होती है उसको थोड़ा सा हम देखेंगे. बेसिकली सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट, ये ल्यूमन है, ट्यूबुलर फ्लूइड, दैट मीन के डोमेन कैप्सूल के से क्रॉस करता हुआ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दैट मीन नेफ्रॉन के अंदर जो है ये प्रेजेंट है. और ये जो सेल्स हैं ये नेफ्रॉन के सेल्स होते हैं. और यहाँ पर जो है ये हमारी क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है. अब रीअब्सॉर्प्शन के लिए या सिक्रीशन के लिए डिफरेंट सब्सटेंसेस से इन्हीं सेल्स को क्रॉस करना है, ल्यूमन में आना है या इन्हीं सेल्स को क्रॉस करके ब्लड में जाना है. ठीक हो क्या. अब carbon dioxide formed in the tubular cells are derived from the tubular fluid combined with the water to form the carbonic acid. अब बेसिकली क्या हो रहा होता है कि सोडियम जो है वो प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट करता है थ्रू कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की वजह से H2O CO2 में. अब ये H2O CO2 एंटर करता है सेल के अंदर, ये बनाता है अगेन बाइकार्बोनेट H2CO3. अब ये H2CO3 डिसोसिएट करता है इनटू द H पॉजिटिव एंड CO3 नेगेटिव में. अब ये CO3 नेगेटिव जो है वो रीअब्सॉर्ब कर जाती है अगेन ब्लड में, और जो हाइड्रोजन आयन है वो सिक्रीट हो जाता है ट्यूबुलर ल्यूमन में. अब ये हाइड्रोजन आयन दोबारा से यहाँ पर मौजूद बाइकार्बोनेट आयन के साथ कंबाइन करेगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा. कार्बोनिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बनाएगी. ये हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर, ये सेल कौन से सेल है, ये सेल बेसिकली वो जो वुमेन कैप्सूल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर दोबारा से ये प्रोसेस रिवर्स होता है, बाइकार्बोनेट बनता है, हाइड्रोजन आयन बनता है. ये हाइड्रोजन आयन दोबारा से सिक्रीट हो जाता है और बाइकार्बोनेट आयन रीअब्सॉर्ब हो जाता है. सो ये जो
हमने कहा था कि हाइड्रोजन आयन जो है वो यूटिलाइज हो रहा है बाइकार्बोनेट आयन की जो है वो अब्सॉर्प्शन में, तो वो किस तरह से हो रहा है उसको जो है वो इस मैकेनिज्म में हमने देखा है। अब दो तरह के पंप यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट पंप एंड एटीपी ड्राइवन पंप। कि इस हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन में इस हाइड्रोजन आयन को ट्यूब्यूल से सिक्रीट कराने के लिए दो तरह के पंप जो है वो काम कर रहे हैं। दैट इज बेसिकली द फर्स्ट इज द सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट पंप, दैट मीन कि सोडियम एंटर करेगी, हाइड्रोजन बाहर की तरफ जाएगी। And the second one is the ATP driven pump, that ATP will cause the movement of hydrogen ion from the cell into the cell lumen, into the nephron। नेफ्रॉन का जो ल्यूमन होता है, ल्यूमन क्या होता है, बेसिकली जैसे एक पाइप है, पाइप के सेंटर में लेके आना किसी चीज को। Okay, hopefully you will understand the basic role of acid base balance of the kidney। हम उसको डिस्कस कर रहे थे, तो किस तरह से वो किडनी का रोल प्ले कर रहा है। पहला क्या है, बाइकार्बोनेट आयन को उससे रीअब्सॉर्ब करवाना है, दूसरा हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन कराना है। लेकिन मोस्टली जो हाइड्रोजन आयन सिक्रीट हो रहा होता है ल्यूमन सेल से ल्यूमन के अंदर, वो मोस्टली क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन की ऑब्जॉर्प्शन में भी रोल प्ले कर रहा होता है। अब यहाँ पे हमने देखा था कि हाइड्रोजन आयन की जो मूवमेंट है उसके लिए दो तरह के पंप काम कर रहे हैं, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट पंप एंड एटीपी ड्राइवन पंप। So sodium hydrogen, when the sodium is reabsorbed from the tubular fluid into the tubular cell, hydrogen ion is secreted from the cell into the tubular fluid in the stage of sodium, and the sodium hydrogen antipode pump present in the tubular cell is responsible for the exchange of sodium and hydrogen। This type of sodium hydrogen counter transport occurs predominantly in the distal convoluted tubule। हमने देखा था कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यू शेप, लूप ऑफ हेनले, देन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सी, और फिर कलेक्टिंग डक्ट सी। तो जो हमारी है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन पंप जो है वो मोस्टली रोल प्ले कर रहे होते हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर अगेन वही जो हमने डिस्कस की थी पिछली स्ट्रक्चर के, सोडियम जो है वो ल्यूमन के अंदर एंटर करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम अलग हो जाती है, बाइकार्बोनेट अलग हो जाता है। अब सोडियम के एक्सचेंज में जो है वो सोडियम के एक्सचेंज में जो है वो हाइड्रोजन एंटर करती है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, अगेन जब ये बाइकार्बोनेट अब्सॉर्ब होके हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ब्लड के अंदर एंटर करती है, यहाँ पे ब्लड की वेसल्स होती हैं, जब ये ब्लड के अंदर एंटर कर रही होती है तो यही सोडियम के साथ दोबारा से मिलके दैट विल फॉर्म द सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर पूरा उस मैकेनिज्म को जो है वो डिफाइन किया हुआ है कि किस तरह सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट पंप जो है वो एक्ट कर रहा होता है। और इससे पहले मैं आपको सोडियम बाइकार्बोनेट की रीअब्सॉर्प्शन के बारे में बता चुकी हूँ कि जो हाइड्रोजन आयन होते हैं जो सेल से सिक्रीट हो रहे होते हैं वो कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। कार्बोनिक एसिड CO2H2O में कन्वर्ट होता है, CO2H2O अगेन सेल के अंदर कंबाइन करके कार्बोनिक एनहाइड्रेट से carbonic acid बना देते हैं, and then this carbonic acid then dissociate into the hydrogen ion and bicarbonate, and this bicarbonate is diffused in one direction towards the blood, and this hydrogen ion again moves towards the lumen of the nephron। एंड देन देयर इज सेकंड टाइप ऑफ, हमने कहा था कि हाइड्रोजन की सिक्रीशन के लिए जो दूसरी तरह का पंप होता है वो एटीपी ड्राइवन पंप होता है। वो एटीपी ड्राइवन पंप जो है वो बेसिकली क्या करता है, सिक्रीशन ऑफ जो है वो क्या कर रहा होता है, हाइड्रोजन कर रहा होता है, और ये मोस्टली जो है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट के इंटरकलेटेड सेल्स के अंदर जो है ये प्रोसेस मोस्टली अक्कर कर रहा होता है, दैट इज विल बी द एटीपी ड्राइवन पंप। यानी कि बाइकार्बोनेट की अब्सॉर्प्शन में रीअब्सॉर्प्शन में हाइड्रोजन आयन जिस तरह से बाहर जा रहा होता है, अगर वहां पे सोडियम प्रेजेंट नहीं है तो सोडियम, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट की तरफ जाते हैं तो वहां पे सोडियम जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन मोस्टली जो है वो प्रॉक्सिमल में और डिस्टल में हो चुकी होती है। अब यहाँ पर क्या होगा, सोडियम के एक्सचेंज में हाइड्रोजन बाहर नहीं जाएगी, बल्कि यहाँ पर एटीपी ड्राइवन पंप होंगे जो कि हाइड्रोजन को बाहर की तरफ जो है वो मूव कराएंगे। तो दो तरह के हाइड्रोजन की सिक्रीशन में पंप है, दैट विल बी द सोडियम हाइड्रोजन पंप एंड एटीपी
ड्राइवन पार्ट। तो हम देख रहे थे किडनी का रोल इन द एसिड बेस बैलेंस, और उस एसिड बेस बैलेंस में हम देख रहे थे नेफ्रॉन का रोल, और उस नेफ्रॉन में हमने देखा था कि एसिड बेस बैलेंस जो है वो बाइकार्बोनेट की रीअब्सॉर्प्शन से और हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन से होता है। और हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन में किस तरह की पंप जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं, दैट विल बी द एटीपी ड्राइवन पंप, एंड दैट एंड फर्स्ट विल बी द सोडियम हाइड्रोजन पंप। सोडियम हाइड्रोजन पंप जो है वो नेफ्रॉन की स्टार्टिंग वे में, जो स्टार्टिंग है दैट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है, ठीक है, वहां पे रोल प्ले कर रहा होता है सोडियम हाइड्रोजन पंप, एंड डिस्टल में भी प्ले कर रहा होता है। लेकिन जो कलेक्टिंग डक्ट होती है बेसिकली वहां पर जो है वो सोडियम ऑलमोस्ट जो है वो रीअब्सॉर्ब हो चुकी होती है नेफ्रॉन के अंदर। तो वहां पे एटीपी ड्राइवन पंप जो है वो हाइड्रोजन आयन को जो है वो सेल से जो है वो ल्यूमन की तरफ लेके जा रहे होते हैं। नेफ्रॉन के जो सेल्स हैं वहां से नेफ्रॉन के जो है वो ल्यूमन में लेके आ रहे होते हैं, ताकि वो यूरिन का पार्ट बन जाए, क्योंकि यूरिन जो है वो एसिडिक होता है। उसके बाद हमारे पास है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड एसिडिफिकेशन ऑफ द यूरिन इज बेसिकली अकर थ्रू थ्री मैकेनिज्म। ठीक है, वो तो हमने उसका नेफ्रॉन के अंदर हमने बताया ना कि बाइकार्बोनेट के एब्जॉर्प्शन से हो रहा होता है और हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन से एसिड बेस बैलेंस हो रहा होता है। लेकिन किडनी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग द मेटाबॉलिक एसिडोसिस by excreting hydrogen ion, और excretion of the hydrogen ion is occur by the three जो है वो बेसिक मैकेनिज्म। अब जो एक्सक्रीशन है हाइड्रोजन आयन की वो तीन मैकेनिज्म के थ्रू हो रही होती है, दैट विल बी द बाइकार्बोनेट मैकेनिज्म, दैट विल बी द फॉस्फेट मैकेनिज्म एंड द अमोनिया मैकेनिज्म। अब हम इस मैकेनिज्म को समझेंगे। बाइकार्बोनेट मैकेनिज्म मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जैसे ही सोडियम, मैं एक दफा फिर आप लोगों को यहाँ बता देती हूँ। हमें पता है कि हमारी जितनी भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर ल्यूमन का मतलब ये है कि वो जो नेफ्रॉन की पूरी एक स्ट्रक्चर है जिसमें से इन एलिमेंट्स में, इन सब्सटेंस में गुजर के जो है वो जाना है, और देन कलेक्टिंग डक्ट एंड देन यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन जो है वो एक्सक्रीट करना है। तो हमारा ग्लोमेरुलस से जितना भी बाइकार्बोनेट जो है वो फिल्टर हो रहा होता है, दैट विल बी अबाउट 80% ऑफ द इज रीअब्सॉर्ब इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, 15% in the loop of Henle, 5% in the distal convoluted tubule, and the reabsorption of bicarbonate utilize the hydrogen ion secretion into the renal tubule। मैं आपको पहले ये बात बता चुकी हूँ कि बाइकार्बोनेट आयन की रीअब्सॉर्प्शन हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन को यूटिलाइज करती है, और वो यूटिलाइजेशन किस तरह से होती है उसको हम देख चुके हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं। हम फिर इस चीज को अगेन देख लेते हैं कि जो बाइकार्बोनेट होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, और ये कार्बोनिक एसिड फौरन से ल्यूमन के अंदर डिसोसिएट कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड और यही वाटर सेल के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, अब ट्यूबुलर ल्यूमन से वो कहाँ पे आ गए हैं, ट्यूबुलर सेल के अंदर आ गए हैं। उस नेफ्रॉन में वो जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट था उसकी जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल थी, वो ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर आया है बाइकार्बोनेट, इसी स्ट्रक्चर के अंदर उसने कंबाइन किया है हाइड्रोजन आयन के साथ, इसी स्ट्रक्चर के अंदर उसने कार्बोनिक एसिड बनाया है, और ये कार्बोनिक एसिड में डिसोसिएट करके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर बनाया है। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड और यही वाटर सेल के अंदर, क्योंकि हमें पता है नेफ्रॉन की जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स हैं, ये डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स हैं, ये सेल्स से मिलकर बनी है ना, और इन्हीं सेल्स के बाहर क्या है, ब्लड वेसल्स है जो कि इसको राउंड अप कर रही होती है। तो अब इन्हीं सेल से क्रॉस करके ये सब्सटेंसेस ब्लड के अंदर और ब्लड से सेल की क्रॉस करके ल्यूमन के अंदर जो है वो एंटर करेंगे। तो अब ये सेल के अंदर आ गया है। सेल के अंदर अगेन जो है वो क्या हुआ है, वाटर ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड और कार्बोनिक एसिड में दोबारा से डिसोसिएट करके हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन। अब आपने ये देखा होगा कि बाइकार्बोनेट आयन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हाइड्रोजन आयन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हाइड्रोजन आयन अगेन ह्यूमन में आता है और वो बाइकार्बोनेट आयन को यूटिलाइज करने में दोबारा से यूटिलाइज हो जाता है बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन करने में,
और जो बाइकार्बोनेट एंटर किया था सेल के अंदर वो दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर जो लेवल इंक्रीज था हाइड्रोजन आयन का, जिसकी वजह से पीएच डिक्रीज कर गई थी, इन्वायरमेंट एसिडिक हो गया था, वो बाइकार्बोनेट की रीअब्सॉर्प्शन की वजह से दोबारा से बेसिक कंडीशन की तरफ मूव कर जाता है। और यही जो बाइकार्बोनेट का मैकेनिज्म है, ये हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन का बायस बन रहा है, हाइड्रोजन आयन की यूटिलाइजेशन का बायस बन रहा है। ओके, तो in the tubular cell carbon dioxide anion combined with the water to form the carbonic acid, and वही मैकेनिज्म मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ कि सेल के अंदर एंटर करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करेगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक जो है वो एसिड डिसोसिएट कर जाएगा हाइड्रोजन में, बाइकार्बोनेट में, देन बाइकार्बोनेट आयन जो है वो क्या हो जाएगा, फ्रॉम द ट्यूबुलर सेल से वो जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस और इंटरस्टिशियल स्पेस से ब्लड के अंदर मूव कर जाएगा। अब साथ में सोडियम भी जो है वो एंटर कर रही होगी। हमने देखा था कि सोडियम और हाइड्रोजन प्रोटॉन फॉर्म होते हैं, तो जैसे ही हाइड्रोजन बाहर की तरफ मूव कर रही होती है, सोडियम सेल के अंदर एंटर करती है, सोडियम सेल के अंदर से इंटरस्टिशियम में आके वो बाइकार्बोनेट के साथ मिलके कंबाइन करके दोबारा से क्या बनाती है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाती है। इस तरह से ब्लड की पीएच जो है वो मेंटेन हो जाती है। ओके, so the hydrogen ion is secreted in the tubular lumen from the cell exchange of sodium। यही बात कि सोडियम के एक्सचेंज में हाइड्रोजन जो है वो सेल के ल्यूमेन में आती है, नेफ्रॉन के ल्यूमेन में आती है, ठीक है। और so the kidney conserves the bicarbonate ion, and this bicarbonate ion then combined with the sodium to form sodium bicarbonate ion in the blood। अगेन वही मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि ट्यूबुलर सेल के बेसिकली क्या हुआ, यहाँ से हम देखते हैं ट्यूबुलर ल्यूमन है। ल्यूमन का मतलब ये है कि ट्यूब्यूल्स के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो नेफ्रॉन के अंदर केमिकल सब्सटेंसेस को सिक्रीट करता है, दैट विल बी। अब वो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो डिसोसिएट करता है सोडियम एंड बाइकार्बोनेट में, सोडियम जो है यहाँ सेल से होती हुई इधर पहुंच जाती है, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है। ये कार्बोनिक एसिड जो है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ट्यूबुलर सेल के अंदर एंटर करते हैं, वहां पे ये कार्बोनिक एसिड दोबारा से प्रोसेस रिवर्स होकर कार्बोनिक एसिड बनेगा, कार्बोनिक एसिड हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में डिसोसिएट कर जाएगा। अब हाइड्रोजन आयन बाहर की तरफ मूव करेगा, जिसके एक्सचेंज में सोडियम आयन अंदर की तरफ मूव करेगा। अब ये सोडियम आयन इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पहुंच के बाइकार्बोनेट आयन के साथ कंबाइन करेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बन जाएगा। तो किस तरह से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन जो है वो नेफ्रॉन के ल्यूमन के अंदर हो रही होती है, उसको हमने डिस्कस किया है। बहुत इजी है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। अब सेकेंड हमने कहा था कि हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन बेसिकली एसिड बेस बैलेंस का रोल प्ले कर रही है नेफ्रॉन के अंदर। तो हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन के तीन मैकेनिज्म है। फर्स्ट वन विल बी द बाइकार्बोनेट मैकेनिज्म, सेकंड वन विल बी द फॉस्फेट मैकेनिज्म। फॉस्फेट का मैकेनिज्म कैसा मैकेनिज्म होगा उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब हमें पता है कि जब भी ट्यूबुलर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ने वाटर के साथ कंबाइन किया था कार्बोनिक एसिड, ट्यूबुलर सेल के अंदर ग्लोमेरुलर से ल्यूमन, ल्यूमन में ल्यूमन के सेल से, वो ल्यूमन के सेल जो है वही ट्यूबुलर सेल्स हैं। अब ट्यूबुलर सेल्स के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड और कार्बोनिक एसिड में डिसोसिएट करके हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयन बना दिया था। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है फ्रॉम द ट्यूबुलर सेल एंटर कर रहा था इंटरस्टिशियम के अंदर। सिमल्टेनियसली सोडियम भी एल्डोस्टेरोन की जो है वो एक्शन की वजह से सोडियम ने जो है वो एंटर किया है इन द इंटरस्टिशियम एंड कंबाइन किया है विद बाइकार्बोनेट के साथ। ओके, अब हाइड्रोजन आयन इज सिक्रेटेड इन द ट्यूबुलर ल्यूमन फ्रॉम द सेल इन द एक्सचेंज ऑफ जो है वो सोडियम। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बाइकार्बोनेट के मैकेनिज्म के अंदर हमने सेम यही देखा था। ट्यूबुलर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड और कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट करके हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन, और यही बाइकार्बोनेट आयन रीअब्सॉर्ब हो गया था इंटरस्टिशियम के अंदर, और सोडियम हाइड्रोजन आयन जो है वो उसके रिवर्स में ल्यूमन में वापस आ गया था रीयूटिलाइज होने के लिए। अब वो कहते हैं कि इन कंबाइन विद सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट टू फॉर्म सोडियम डाइफॉस्फेट। जो हाइड्रोजन है सिक्रीट होती है ट्यूबुलर ल्यूमन के अंदर फ्रॉम द सेल इन द एक्सचेंज ऑफ सोडियम, वो कंबाइन करती है, इट कंबाइन विद द सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ
ये हाइड्रोजन कंबाइन करके सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट बनाती हैं, और ये डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट is separated in the urine and the hydrogen is added up in the urine to form the sodium diacetyl phosphate. अब वही सेम मैकेनिज्म हो रहा होता है, बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, हाइड्रोजन आयन जो है वो यहाँ पे आ रहा होता है ह्यूमन में। अब वो कहते हैं कि हाइड्रोजन आयन ना सिर्फ बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन करता है, ये सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट बनाता है। वही जो बाइकार्बोनेट के नतीजे में हाइड्रोजन आयन जो बन रहा था, जो ट्यूबुलर ल्यूमेन के अंदर आ रहा था, वो सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट बनाता है। और यही सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट बेसिकली हाइड्रोजन आयन की ट्यूबुलर सेल से सिक्रीशन का और ल्यूमिनल सेल में एडिशन का बाइस बनता है। तो हमारे पास जो इन्वायरमेंट है यूरिन का वो एसिडिक हो जाता है। तो इट हैपेंड मोस्टली इन द डिस्टल ट्यूब्यूल and collecting term, and hydrogen ion which is secreted in the renal tubule relax with the phosphate buffer system. तो ये जो हमारा सिस्टम था ये हमारा phosphate buffer system था। अगेन इसके अंदर भी वही चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से सोडियम जो है वो हाइड्रोजन फॉस्फेट जो है सोडियम सबसे पहले जो है वो सिक्रीट हुआ यहाँ पे, और सोडियम और हाइड्रोजन का आपस में एक्सचेंज हुआ है। सोडियम जो है वो अगेन एंटर कर रही है सेल के अंदर। यहाँ पे हमारे पास जो है वो बाइकार्बोनेट मैकेनिज्म के थ्रू ऑलरेडी कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट की रिऑक्सिडेशन हो गई थी, और हाइड्रोजन आयन जो है वो ट्यूबुलर ल्यूमेन में आ गया था। ट्यूबुलर ल्यूमेन में आने के बाद हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा था सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट से, और सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट बन गया। अब ये सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट बेसिकली मोर एसिडिक है, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो क्या होता है, नेफ्रॉन के अंदर जो है वो एसिडिक हो जाता है। तो जो हमारा सेकंड मैकेनिज्म है कि हाइड्रोजन की सिक्रीशन का, दैट विल बी द फॉस्फेट मैकेनिज्म। द थर्ड वन इज द अमोनिया मैकेनिज्म। तीसरा मैकेनिज्म एसिड बेस बैलेंस का थ्रू किडनी हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन का, हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन का फ्रॉम द सेल इनटू द tubules of the nephron and increasing the pH of the urine is the third mechanism, is the ammonia mechanism. How this mechanism will occur in the kidney? Again हम तीन चीजों को जो है वो लेते हैं, ब्लड वेसल्स को, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के सेल्स को, और साथ में हमारे पास ल्यूमेन को। अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा होता है, डेट विल बी द ग्लूटामिक, बेसिकली ग्लूटामिन या किसी भी अमाइनो एसिड में से जब हम कुछ उसके कह लें कि अमाइनो एसिड में से डीअमाइनाइजेशन का आप प्रोसेस करते हैं, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड को हम देख रहे हैं, ग्लूटामीन इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूटामिक एसिड एंड द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूटामिनेज। मतलब ये कि जो नेफ्रॉन के सेल्स हैं इंटरकलेटेड, यानी कि वुमेन के थ्रू या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के सेल्स हैं, उसके अंदर ग्लूटामाइनेज जो है वो एंजाइम मौजूद है जो कि कन्वर्ट करता है ग्लूटामीन को इनटू द ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, देन इस सारे प्रोसेस के अंदर अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस होती है। Ammonia is produced in the deamination of some of the amino acids such as glycine and alanine. जब ग्लाइसिन और एलानिन की ग्लूटामीन से ग्लूटामीन बेसिकली ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था, तो जो ग्लाइसिन और एलानिन की डीअमाइनेशन जो है उनका प्रोसेस होगा, उससे इंटरक्लेटेड सेल्स के अंदर अमोनिया बन रहा होता है। ओके, अब हमने देखा है कि किस तरह से अमोनिया जो है वो हाइड्रोजन आयन के साथ मूव करता है। अब ये जो सेल्स के अंदर, ट्यूबुलर सेल्स के अंदर जो अमोनिया ग्लूटामिनेज एंजाइम ने ग्लूटामिन को ग्लूटामिक एसिड के अंदर कन्वर्ट किया है, और वहाँ पे एलानिन की डीअमाइनेशन हुई है कि अमाइनो एसिड का ग्रुप जो है वहां से निकला है, तो वहां से क्या बना है, अमोनिया की फॉर्मेशन हुई है। अब ये अमोनिया जो है वो ल्यूमन के अंदर आ जाएगी, मीन के सेल से अगेन ल्यूमन के अंदर मूव कर जाएगी। अब ल्यूमन के अंदर बाइकार्बोनेट मैकेनिज्म के थ्रू
ऑलरेडी हाइड्रोजन आयन ह्यूमन के अंदर मूव कर रहा था। अब ये अमोनिया कंबाइन करेगी हाइड्रोजन आयन के साथ और बनाएगी अमोनियम। और ये जो अमोनियम है ये रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकता, तो जो सेल्स हैं नेफ्रॉन के प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स के सेल के अंदर दोबारा रीअब्सॉर्ब होकर ब्लड का पार्ट नहीं बन सकता। So for each ammonium excreted, one hydrogen bicarbonate ion is added to the interstitial fluid। तो हमें वही पता है कि बाइकार्बोनेट आयन ऐड हो रहा है, वो रिअब्सॉर्ब हो रहा है, ऐड हो रहा है सेल के अंदर। हाइड्रोजन आयन जो है वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है, वही हाइड्रोजन आयन जो बाइकार्बोनेट के प्रोसेस के थ्रू सेल्स के अंदर आया था वो अमोनिया के साथ मिलके अमोनियम बना देता है। तो वो कहते हैं कि for each NH4 excreted, one bicarbonate is added into the interstitial fluid, and the process takes place mostly in the proximal convoluted tubule because glutamine is converted into the ammonia in the cells of this segment। जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटिव ट्यूब्यूल्स के सेल्स हैं वो बेसिकली ग्लूटामीन को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। Thus, the excreting hydrogen ion and conserving bicarbonate ion kidney produce acidic urine। अमोनियम अमोनियम क्या है? हाइड्रोजन आयन एडिशन का कंपाउंड है। दैट मीन दैट विल बी एसिडिक। सो एसिडिक अमोनिया जो है एसिडिक फॉस्फेट जो है वो हाइड्रोजन आयन की एडिशन होती है फॉस्फेट में भी। तो ये क्या कर रहे हैं? यूरिन को मोर एसिडिक बना रहे हैं। और हमारा पर्पस भी यही था कि हमारी बॉडी से ब्लड के प्लाज्मा में जितने भी एसिडिक कंपाउंड हैं उन एसिडिक कंपाउंड को यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर देना। तो वो यूरिन के थ्रू जो एक्सक्रीशन के प्रोसेस था वो बाइकार्बोनेट मैकेनिज्म के थ्रू, वो फॉस्फेट मैकेनिज्म के थ्रू, वो अमोनियम मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो टेक प्लेस हो रहा था। अगेन इस डायग्राम के अंदर इसी सेल्स को बताया हुआ है कि ग्लूटामीन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है थ्रू डीअमाइनेशन इनटू द अमोनिया। अब आप ये देख लें कि अमोनिया जो है वो ट्यूबुलर सेल से ट्यूबुलर ल्यूमेन के अंदर आ गया है। बाइकार्बोनेट मैकेनिज्म जो है उसके थ्रू जो हाइड्रोजन आयन बन रहा था वो हाइड्रोजन आयन ऑपोजिट डायरेक्शन में हाइड्रोजन आयन ट्यूबुलर ल्यूमेन में और बाइकार्बोनेट इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एंटर करेगा और हाइड्रोजन आयन कंबाइन करेगा अमोनिया के साथ और वो बना देगा अमोनियम। एंड दिस अमोनियम इज बेसिकली मोर एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द यूरिन एंड इट इज एक्सक्रीटेड थ्रू दिस प्रोसेस। In this ammonia mechanism, again the process with description is basically given. So I added this figure here again. Glutamine is converted into the ammonia, and then this ammonia, how this ammonia is। अच्छा, इस डायग्राम के अंदर हमने सेल के अंदर ही इस अमोनियम को जो है वो बना लिया है और ये अमोनियम जो है वो सेल के बाहर जो है वो अगेन जो है वो एक्सक्रीट कर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स हैं उनके अंदर ग्लूटामीन एंटर कर रहा है। ग्लूटामीन की वजह से डीअमाइनेशन की वजह से जो है वो किस तरह से अमोनिया में कन्वर्ट होता है और ये अमोनिया जो है वो एक्सक्रीट करती है सेल्स के अंदर। So that will all about the acid base balance कि किस तरह से किडनी हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एसिड बेस रोल जो है वो प्ले कर रही है। अब ये जो यूरिन था जो कि फॉस्फेट रिच था, जो कि अमोनियम रिच था, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन रिच था, this will basically the increase in the pH of the urine and make the urine more acidic। What is basically applied physiology? Applied physiology is basically metabolic acidosis occur when the kidney fail to excrete metabolic acid। अगर किडनी अपना फंक्शन ही फेल हो जाता है, उसका किडनी का फंक्शन ही फेल हो गया है, उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा, किडनी फेल हो चुकी है टू एक्सक्रीट द मेटाबॉलिक एसिड, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस का जो है वो अकर करती है। और मेटाबॉलिक एल्काइलोसिस अकर करती है व्हेन द किडनी एक्सक्रीट लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी से नेफ्रॉन से जो है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में जो है वो एक्सक्रीट कर जाती है, तो जो कंडीशन होती है बॉडी की उसमें बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास मेटाबॉलिक एल्काइलोसिस होता है। और ये फर्दर डिफरेंट जो है वो
बॉडी को जो है वो डैमेजिंग और प्रोसेस में जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं. So that is all about the applied physiology. That will be the metabolic acidosis and metabolic alkalosis, and how the acid base. So in this lecture, we basically discuss the role of kidney in the maintenance of the acid base balance of the body. कि किस तरह से किडनी के नेफ्रॉन reabsorption और secretion के process के through किस तरह से three mechanism, that will be the bicarbonate, ammonium and phosphate mechanism. Through this they play an important role in the acidification of urine and the acid base balance of the body. Hopefully you will understand this lecture. Okay ji, Allah Hafiz.